Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss on exercise number 6.3, question number 10 and 11 of similar triangles, page number 145 and 146. The question number 10 is very important question. Question number 10. CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar to triangle FEG, show that CD divided by GH is equal to AC divided by FG. Number second, triangle DCB is similar to triangle HGE, and number third, DCA is similar to triangle DCA is similar to triangle HGF. एक ट्रायंगल है ABC, ABC ट्रायंगल है और दूसरी ट्रायंगल है इसका नाम है FEG। और यहां पर CD एंड GH, CD और GH जो है ये एंगल बाइसेक्टर्स है। GH ये एंगल BCA को बाइसेक्ट करता है, ये EGF को बाइसेक्ट। इसका मतलब है ये और ये एंगल आपस में CD एंड GH, इसका मतलब हो गया BCD इज इक्वल टू DCA। यहां पर EGH इज इक्वल टू EHGF। ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। हमने ये शो दैट CD डिवाइड बाय GH इज इक्वल टू AC डिवाइड बाय FG। पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन CD and GH or respectively bisectors ये वहां पर लिखा हुआ है ऑफ एंगल ACB। CD इसका बाइसेक्टर है एंड एंगल EGH एंड एंगल EGF का ये बाइसेक्टर है such that D and H lies on sides AB plus AB and FE। CD जो है ये AB पर है और GH जो है ये FE पर है। FE of triangle ABC and triangle ABC and triangle EFG ये गिवन है। And also triangle ABC is similar to triangle FEG। ये इंपॉर्टेंट है FEG, ये यहां पर आपने समझना है।
ABC is similar to triangle FEG. तभी मैंने A के सीधे लिखा है, B को कॉरस्पॉन्ड करता है E और पॉइंट C को कॉरस्पॉन्ड करता है पॉइंट G. तो प्रूव, हमने प्रूव करना है नंबर 1, CD डिवाइडेड बाय GH is equal to AC divided by FG. Number 2, triangle DCB is similar to triangle HGE. Number 3, triangle DCA is similar to triangle HGF. ये 3 चीजें हमने प्रूव करनी है. अब हम प्रूफ लिखेंगे. प्रूफ, in triangle ABC and sinus triangle ABC is similar to triangle FEG. ये गिवन है यहां पर. ये ABC is similar to triangle FEG. Therefore हम लिख सकते हैं एंगल A is equal to एंगल F, एंगल A is equal to एंगल F, comma एंगल B is equal to एंगल E, and एंगल ACB is equal to एंगल FGE. When triangles are similar, their students, we know that when triangles are similar, then their corresponding angles are equal. A correspond करता है F से, यहाँ पर भी A करता है F से, B करता है E से और C करता है G से. यहाँ पर बीच का पॉइंट है C और यहाँ पर मिडिल पॉइंट है G. इसका मतलब है ये आपस में equal है. When triangles are similar, then corresponding angles are equal. Now in triangle, अब उठाएंगे हम ये ट्रायंगल DCB and triangle HGE. ये दो ट्रायंगल्स हम उठाएंगे. एक बार फिर प्रूफ देख लीजिए आप. सिनस ट्रायंगल ABC is similar to triangle FEG. ये गिवन है. Therefore हम लिख सकते हैं एंगल A is equal to एंगल F, क्योंकि A कॉरस्पॉन्ड करता है F से, B करता है E से, C करता है G से, एंगल B is equal to एंगल E and एंगल ACB. मैंने यहाँ पर ACB इसलिए लिखा क्योंकि C के यहाँ पर दो पार्ट्स, तभी मैंने पूरा एंगल लिखा. ACB ये पूरा एंगल इज इक्वल टू FGE, ये भी यहां पर पूरा एंगल. नाउ अब हम ये दो ट्रायंगल्स हम आपस में सिमिलर करेंगे. इन ट्रायंगल DCB and triangle HGE, angle B is equal to angle E. Proved above. यहां पर ये एंगल B is equal to एंगल E. इसी तरह यहां पर इससे पहले मैं एक बात और लिखूंगा. ये ट्रायंगल भी नहीं उठाऊंगा अभी. ऑल्सो यहां पर लिखूंगा ऑल्सो CD and GH और bisectors of angle
ACB and angle FGE respectively. Therefore, one half of angle ACB is equal to one half of angle FGE. इसका मतलब हो गया वन हाफ ऑफ एंगल ACB का हाफ और FGE का हाफ आपस में बराबर है, एम्प्लॉइज दैट इज, इसका मतलब हम ये भी DCB एंगल DCB is equal to angle HGE and angle ACD is equal to angle FGH या FGH। एक बार फिर यहां पर आप ध्यान दीजिए, CD and GH और बाइसेक्टर्स, बाइसेक्ट मीन्स ये इस एंगल को बाइसेक्ट डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, और बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंड FGE। CD जो है ये बाइसेक्टर है एंगल ACB का, और GH जो है ये FGE का बाइसेक्टर है रेस्पेक्टिवली। तो हम लिख सकते हैं इसका जो आधा एंगल है वो इसके आधे के बराबर है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपस में बराबर है। ACB is equal to FGE because triangle ABC is similar to triangle FEG। जब ये सिमिलर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो सीधी सी बात है इनका हाफ भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, ये इनको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। दैट इज, इसका आधा जो है वो DCB है, इसका आधा जो है वो है HGE एंड इस तरह से भी हम लिख सकते हैं AC, इसका आधा ACD भी है इज इक्वल टू FGH भी है, ये दोनों हम लिख सकते हैं। अब हम उठाएंगे ये ट्रायंगल्स DCB एंड HGE in triangle। Now in triangle DCB ये हमने प्रूव करनी है, एंड ट्रायंगल HGE ये आप ये प्रूव मैं यहां पर लिखूंगा। प्रूव हमने क्या क्या करना है, CD डिवाइडेड बाय GH is equal to AC divided by FG। Number second, triangle DCB is similar to triangle HGE। Number third, triangle DCA is similar to triangle HGF। ये तीन जो है ये हमने प्रूव करने हैं। मैंने ये ट्रायंगल उठाई DCB सिमिलर टू ट्रायंगल इन ट्रायंगल DCB एंड HGE। DCB इसमें एंगल B जो है एंगल E के बराबर है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, प्रूव्ड अबव। जैसे कि हमने पहले ही लिखा था ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, therefore angle B is equal to angle E। When triangles are similar, their corresponding sides are equal। इसी तरह DCB is equal to angle HGE proved above। ये भी हमने प्रूव किया यहां पर। DCB is equal to HGE proved above, therefore triangle DCB
is similar to triangle HGE by AA similarity. AA by AA similarity criterion. By AA similarity criterion. A similarity हमें ये बताती है if two angles of one triangle are equal to the two angles of the another triangle, then the two triangles are similar. Which proves first? Which proves second part है ये second part हमें prove हो गया. अब हम उठाएंगे in triangle DCA and triangle in triangle DCA and triangle HGF DCA and HGF. Angle A is equal to angle F. Angle A is equal to angle F. ये भी हमने प्रूव किया, वो ऊपर प्रूफ में पहले ही लिखा था, प्रूव्ड अबव. इसी तरह मैं लिखूंगा एंगल ACD is equal to angle FGH. ये भी लिखूंगा प्रूव्ड अबव. Therefore, triangle DCA is similar to triangle HGF by A similarity. एक ट्रायंगल के अगर हमें दो एंगल दूसरी ट्रायंगल के दो एंगल्स के बराबर निकले तो वो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होती हैं by A similarity, which proves third. ये थर्ड पार्ट भी हमने प्रूव किया. अब हमने लिखना है CD divided by GH. CD divided by GH is equal to AC divided by FG. 10 यहां पर मैं लिखूंगा 10. एंगल A का अपोजिट जो है इस साइड में वो है CD डिवाइडेड बाय, और ये देखो F का अपोजिट जो है वो है GH इज इक्वल टू. अब ये दूसरा एंगल C का अपोजिट देखो, इसमें इस एंगल का अपोजिट ACD का अपोजिट है AD और G का अपोजिट देखो यहां पर इस एंगल का FGH या FGH का जो अपोजिट है, इस एंगल का जो अपोजिट साइड है वो है HF या FH इज इक्वल टू थर्ड साइड जो यहां रहता है इस ट्रायंगल में DCA. CD भी आ गया, AD भी आ गया, CD भी आ गया, AD भी आ गया. अब रह गया यहां पर AC. थर्ड साइड यहां पर A है डिवाइडेड बाय, अब यहां पर देखो थर्ड साइड क्या है GH और FH. GH भी आ गया, FH भी आ. अब रह गया यहां पर GF या FG. मेरा समझाने का यहां पर अंडरस्टैंड करने का मतलब यह है, जब दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हों, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं, उनके अपोजिट साइड जो आपस में होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं. जैसे कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल F. एंगल A इज इक्वल टू एंगल F इन दो ट्रायंगल्स में. यहां पर A का अपोजिट साइड जो है वो CD है, मैंने लिखा CD. F का अपोजिट साइड जो है वो GH है, मैंने लिखा GH.
अब दूसरा एंगल, ये सी है यहाँ पर, तो सी का अपोजिट साइड है यहाँ पर ए डी, और जी का अपोजिट साइड जो यहाँ पर है इस ट्रायंगल में वो है एफ एच। अब तीसरा साइड जो वहां रह गया वो ऑटोमेटिक, वो खुद ही तीसरा साइड तीसरे साइड को कॉरस्पॉन्ड करेगा। तीसरा साइड यहाँ रहता है ए सी, यहाँ रहता है एफ जी। एम्प्लॉइज सी डी डिवाइडेड बाय जी एच इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय एफ जी, हेंस प्रूव। ये दो मैंने फॉरवर्ड किए, आगे ले गया मैं इनको, हेंस प्रूव। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 10 था बच्चों, 10 है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है, E is a point on sides, E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC। ABC जो है isosceles triangle है। Isosceles triangle की डेफिनेशन है, a triangle in which two sides are equal, any two sides। मैंने यहाँ पर AB लिखा AC के बराबर, AB is equal to AC। मैंने क्या यहाँ पर लिखा हुआ है AB is equal to AC। If AD is perpendicular on BC, AD जो है ये परपेंडिकुलर है BC पर, इसका मतलब है ये 90 डिग्री है। एंड EF is perpendicular on, ये जो CB है, CB जो है ये प्रोड्यूस किया गया है, यहां तक प्रोड्यूस किया गया है। E is a point on side CB produced of a triangle है, ये प्रोड्यूस किया है, ये साइड जो है प्रोड्यूस किया गया है, और ये E इसी पर है। और एंड EF is perpendicular on, EF is perpendicular on AC, AC पर ये परपेंडिकुलर है, यहां पर ये 90 डिग्री है। EF गिवन हम लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है ये। गिवन an isosceles triangle, an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC। ये AB जो है ये AC के बराबर है, AB is equal to AC। and E is a point, on side CB produced, also AD is perpendicular on BC and EF is perpendicular on AC। we shall prove that triangle ABD, ये triangle ABD is similar to triangle ECF। प्रूफ लिखूंगा मैं, प्रूफ
प्रूफ हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल बी AB इज इक्वल टू AC। ये गिवन है क्योंकि बिकॉज ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये वहीं से दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू AC। देयरफॉर AB का अपोजिट साइड जो है वो C है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। यहां पर लिखूंगा मैं बिकॉज ये 9th में हमने ट्रायंगल्स में थ्योरम पढ़ी है, बिकॉज एंगल्स opposite to equal sides, angles opposite to equal sides are equal। ये एंगल्स हैं, ये अपोजिट साइड्स के, जो अगर ट्रायंगल में दो साइड्स अपोजिट हों तो उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। नाउ इन ट्रायंगल ABD and triangle ABD, इसमें लिखूंगा मैं एंगल 1। ECF इसको लिखूंगा मैं एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 is 90 because AD is perpendicular on BC and EF is perpendicular on AC। तो therefore angle 1 is equal to angle 2 and एंगल इसका, ये एंगल, इसका नाम रखूंगा मैं एंगल 3, इसका रखूंगा एंगल 3 इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर बी के दो, एक यहाँ पर बाहर की तरह एक अंदर की तरफ है ट्रायंगल के ABC के, तो इसका नाम रखा मैंने एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल C। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल C। ABD में एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल C, यहां पर लिखूंगा मैं बिकॉज एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ये यहां पर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, इसका मतलब है B की जगह हम एंगल 3 लिख सकते हैं और C अकेला यहां पर, इसको यहां पर दो एंगल्स नहीं, जैसे कि यहां पर B के इधर से लाइन जाती है तो यहां पर समझने में थोड़ा मुश्किल हो जाए। अगर मैं B लिखूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये बाहर वाला एंगल है अंदर वाला है, लिहाजा इसका नाम लिखा मैंने यहां पर 3। C तो बिल्कुल ऑब्वियस है, वो एंगल C है। 10 ट्रायंगल ABD is similar to triangle ECF by AA similarity, hence proved। ये आप जानते हैं कि एक ट्रायंगल के दो एंगल अगर बराबर हों दूसरी ट्रायंगल के दो एंगल्स को, तो वो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होती है। आप इनको ट्राई करें ताकि अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन होगा, ट्राई करने से आपको पता चलेगा कि खुद ही मतलब वो समझ आ जाएगा। बार बार आप जब फिगर भी देखोगे, यहाँ पर ये भी देखोगे, ये ड्रिल भी देखोगे कि टीचर ने कैसे किया है, कैसे लिखा है, तो फिर आपको अच्छी तरह से ये समझ आ जाएगा। थैंक यू फॉर टुडे।